Okay. Good morning and welcome everyone to the second session of the day of 1 week faculty development program on skill development for employability and entrepreneurship, presented by Training and Placement Cell, Guru Chambeshwar University of Science and Technology, HISA, and sponsored by All India Council for Technical Education. Entrepreneurship is all about taking risk, failing, but still not giving up and finally succeed. But no matter how great your business idea is, our one essential element of startup success is your ability to obtain sufficient funding to start and grow the business. While many people finance their new companies with their own capital or by borrowing money from family or friends, there are other options available also. But startup founders must understand that raising startup funding is never easy and usually take anticipated. So let's start this session without any further delay. And I would like to call upon Assistant Director of Training and Placement Cell, Mr. Aditya Veer Singh sir, to formally welcome our respected speaker, Mr. Jagat Phogat sir. Thank you, Nishant. Warm welcome to our today's keynote speaker, Mr. Jagat Jeet Singh Phogat ji. Mr. Jagat Phogat is an entrepreneur and founder of Sambaram Group of Companies and also designated as Director of Business Intelligence and HRD. Mr. Phogat has completed his BTech Mechanical in 2010 from Kurukshetra University. So if you see, he has a total work experience of 24 years and professional experience of almost 12 years. And even he's into social work also. So he's been doing the social work of around 12 years. So Mr. Phogat has been awarded with a lot of awards like Excellence Award for 2019. He has been awarded a Social Innovation Award 2019 again. And the Young Achievers Award 2015, youngest most successful TPO also in 2012. So you can see he has a vast experience in almost all of the fields. So I hope the students will get benefit from his rich experience and the valuable information he will be sharing with you. So warm welcome to Mr. Jagat Singh Phogat ji. So Jagat ji, we can start the session. Yeah. Thank you so very much, Aditya ji, for such a nice introduction of mine. Yeah, thank you so very much. Yeah, awards are just accolades and appreciations for everyone. So I just got the same thing as you people, like the students are getting during your tenure in the college and all. Yeah. So although I belong to Hisar itself, so I'm a very native to Guru Jambeshwar University as well. Thank you, team. Thank you so very much. So let me start my session. मुझे आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि हमारे जो स्टूडेंट बच्चा है इन सभी को बताया जाए कि स्टार्टअप कैसे शुरू किया जा सकता है और उसके लिए फंडिंग असिस्टेंट कहाँ से हमें मिल सकता है. दैट्स अ मेन इशू एंड द मेन प्रॉब्लम वी पीपल फेस एवरी टाइम, राइट. खासकर मेरे जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स और लाइक जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि ये फंडिंग कहाँ से लेकर के आए. So prior to start my presentation, I would request everyone to please open your chat box. Open your chat box, please. I wanted to know something from you people. It would be more easy for me to explain the things and it would be more easy for me to understand your mentality level so that I can brief the things accordingly. Yeah, so आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं. सो आपको यस में लिखना है. जो करना चाहते हैं अपने चैट बॉक्स में आप यस लिखिए, बस मैं समझ जाऊंगा कि कौन कौन बिजनेसमैन बनना चाहते हैं. यस. 1 शाकिल, ऋतिक, अमय, अंकित, अनीशा, अमरजीत, साकेत, प्रशांत, ज्योति, काजल, दिनेश. ग्रेट. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स या नेटिव ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं? यस में लिखना है. श्याम सुंदर जी, या ओनली 1. अमरजीत जी, अमृता, अमिता विजय, या अमय बिंद्रा,
ऋतिक, प्रशांत, काजल, नो काजल नो, ओके, ओनली यस वालों को ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ। चलिए, दो चीजें मुझे पता चली, ठीक है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले 1, 2 या 3 साल में किसी ना किसी स्टार्टअप को या अपने किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने एक स्टेप आगे लिया है, या अपनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से जाकर के कांटेक्ट किया, या प्रोटोटाइप कुछ करने के लिए आप लोगों ने एफर्ट स्टार्ट किया? स्टार्ट नाउ, यस यस में आप लिखना शुरू कीजिए। डॉक्टर अमरजीत, ग्रेट। साकेत, 2 candidates are there, great। चलिए, मैं आज यहाँ दिल्ली में हूँ, और प्रगति मैदान में आप लोगों को पता होगा कि एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर साल लगता है। पिछले 2 साल से नहीं लग रहा था, इस साल लग रहा है। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर MSME हरियाणा। तो मुझे ये आज, क्योंकि ये सेशन देना था, तो यहाँ के एक एम्प्लॉई का क्वार्टर मुझे मिल गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मुझे एक सेशन देना है, तो मुझे सेपरेट प्लेस चाहिए। मैं यहाँ से आप लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ। हो सकता है कोई है, तो जैसे ही मेरी वॉइस कहीं पर ब्रेक होने लगे, आप मुझे इंडिकेट कर सकते हैं। या लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। My screen is visible to all? Yes, it is visible. Okay. Yes, sir. Yeah. So today we are going to discuss on the scheme for the promotion of entrepreneurship and startup. So हमारी सरकार स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ावा देने के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रोग्रेस देने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए जो सब एफर्ट कर रही है, वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इसमें से आप कुछ जानते भी हैं, और हो सकता है इसमें से किसी स्कीम का आप फ्यूचर में बेनिफिट भी ले पाए। सो द बेसिक बैकग्राउंड बिहाइंड दिस स्कीम की लिटरेसी रेट है वो कम ज्यादा हो जाए, एजुकेशन इम्प्रूव हो जाए, हमारा पर कैपिटा इनकम है और पॉवर्टी लाइन है वो अभी तक बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया। पिछले 70 साल की एफर्ट के बाद भी हम लोग केवल थोड़ा सा ही ऊपर प्रोग्रेस कर पाए, और वो ओनली 4 to 5% का ही है। 70% ऑफ पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो 35 साल की एज से बिलो है। मीन्स की दिस इज आवर स्ट्रेंथ कि हमारे पास यंग जनरेशन, यंग हैंड्स, हमारे पास यंग ब्रेन बहुत ज्यादा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। ये सरकार ने बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए, लेकिन उसका भी बेनिफिट हम बहुत ज्यादा नहीं उठा पाए हैं। यू वुड फील सरप्राइज कि पिछले 18 सालों के एफर्ट में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, पिछले 18 सालों के एफर्ट में हम लोग 15% से ज्यादा यूथ को स्किल्ड बनाने में कामयाब हुए, लेकिन उसमें से एम्प्लॉयमेंट केवल 0.2% ही हो पाए। यू गॉट माई पॉइंट कि इसका रीजन क्या रहा? इसका रीजन ये रहा कि हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड जरूर किए, लेकिन हम लोगों ने अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वो एफर्ट नहीं की। सो अगर मैं यही बात रेप्लिकेट करके बोलूं कि हम लोग बीटेक और एमबीए तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम बीटेक और एमबीए करने के बाद इंजीनियर बनने के लायक कितना बन पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत समझने की बात है। हम एमबीए कर तो जरूर रहे हैं, लेकिन एमबीए करने के बाद हम किसी मेजर लेवल तक पहुंचने के लिए हमें क्या एफर्ट करना चाहिए और क्या स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए, हम उन स्किल्स को डेवलप करने में बहुत पीछे रहे। ये सभी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, और बहुतायत में अगर हम देखें कि पिछले 4 सालों में हमारे देश ने स्टार्टअप्स में और स्टैंड अप इंडिया में, मीन्स की वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप में कितना ग्रोथ किया। यू वुड फील वेरी सरप्राइज कि 20 से भी ज्यादा 20 से भी मतलब 20th रैंक से भी ज्यादा हमारा रैंक था स्टार्टअप्स में, कि हम लोग कितने स्टार्टअप हर साल डेवलप कर पा रहे हैं। लेकिन 2015 में 2015 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने एक कैंपेन किया
कि स्टार्टअप इंडिया टेक द यूथ फॉरवर्ड एंड लेट देम motivate to come forward to start your own startup with and improve the skills and what कि लोगों की समस्याओं को खत्म करने के लिए हम लोग हाथ मिला करके आगे बढ़े। आज हमारे देश सेकंड रैंक पर है केवल पिछले 5-6 सालों के एफर्ट में, जब हमारे देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। एंड यू वुड फील वेरी फैसिनेट कि ऐसे 90% से ज्यादा स्टार्टअप हमारे जैसे कॉलेज के स्टूडेंट ने, आप जैसे कॉलेज के बच्चों ने ही स्टार्ट किए हैं। IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, या फिर वो लोग जिन्होंने अपना जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सो दिस इज वेरी मेस्मराइजिंग रेशो की यूथ बहुत आगे निकल करके आ रहा है। आपको केवल एक एक्सेलरेशन चाहिए था, एक टच चाहिए था, एक हैंड होल्डिंग चाहिए था, जो कि इस गवर्नमेंट ने देने का कोशिश किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की फूड में हम लोग अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, ये सब स्कीम्स जो हमारे देश में पिछले 5-6 सालों में लॉन्च हुई है, इसने एक नया ही आयाम हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया है। अगर मैं अपनी ही बात करूंगा, 2015 में जब मैंने फर्स्ट अपना कंपनी IT कंपनी से मैंने स्टार्ट किया, सो मेरे सामने इतनी प्रॉब्लम्स थी फेस करने के लिए, कंप्लायंसेस, डेली के लेटर्स, डिपार्टमेंटल विजिट्स, इंस्पेक्शन, की कंपनी चलाने का टाइम मुझे कम मिल रहा था, अपने आप को एग्जीक्यूट करने का टाइम मुझे कम मिल रहा था, लेकिन रोज कागजों का रिप्लाई करने में मेरा टाइम ज्यादा जा रहा। 365 दिन में से 200 दिन हम ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे थे। लेकिन 2015 में जैसे ही ईज ऑफ डूइंग स्टार्टअप इंडिया कैंपेन आया हमारे सामने, GST आया हमारे सामने, तो सारी तरह की समस्या एकदम से खत्म हो गई। हमें इजी लगने लग गया कि हाँ, अब बिजनेस किया जा सकता है, अब समझ में आ रहा है कि अब हम बिजनेस कर सकते हैं। अदरवाइज 2015 से लेकर के 2017 तक का ये जो टाइम पीरियड था, दिस वाज वेरी क्रूशियल टाइम। सो इसी ने प्रमोट भी किया सब चीजों को, यूथ को आगे लेकर के आने में। So I would start with the first scheme that is given by our honorable Prime Minister. So उन्होंने 2008 में हालांकि ये स्कीम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसका मेन एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट हुआ, वो इसका अभी क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जरूर जाता है, क्योंकि उससे पहले ये केवल कागजों में बहुत ज्यादा थी, और इसे धरातल पर लेकर के आने का काम इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। 15 अगस्त 2008 को ये स्कीम लॉन्च की गई। स्कीम में जो भी लोग अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज का हो सकता है, वो आप पेन पेपर कॉपी बनाने से लेकर के आप गांव में कोई कागज से कोई कलाकारी करने में, आर्ट वर्क करने में, आप बैम्बू से कोई चीज बनाने में, राइट, आप बैग्स बनाने में, आप हनी बनाने में, ओके, जो भी चीज आपको समझ में आती है, आप अगर फूड वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने, किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सो गवर्नमेंट ने 25 लाख का एक फंडिंग असिस्टेंट, ओके, और ये असिस्टेंट विदाउट एनी कोलेट्रल लोन, आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है किसी भी टाइप का, ओके, सो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई टू द खादी विलेज इंडस्ट्री। सो KVIC, हर स्टेट का अपना एक बोर्ड है, हर स्टेट का अपना एक खादी डिपार्टमेंट है, सेंटर का अपना अलग डिपार्टमेंट है। तो अब हमारी स्टेट, हरियाणा स्टेट का जो मेन हेड ऑफिस है वो अंबाला में है। सो आप खादी को जाकर के डायरेक्टली अपना एक लेटर दे सकते हैं कि मैं इस तरीके से काम शुरू करना चाहता हूँ। वहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको खादी की वेबसाइट पर और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। दिस इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन दैट DPR। आप लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। सो 20 up to 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और अप टू 10 लाख सर्विस सेक्टर में। इसमें द मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 18 ईयर्स, ओके। सो नीचे जो इंडेक्स में दिया हुआ है, इस चीज को आप समझने की जरूरत है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो आपको 10% का आपका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा और 90% आपको खादी बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। बल्कि 25 लाख के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सो 22.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग असिस्टेंस मिलेगा और 2.5 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट से लगाना होगा। अगर आप यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर किसी अर्बन एरिया में लगा रहे हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन जो रेट ऑफ सब्सिडी है, ये जो आपको 25 लाख रुपए मिलेगा, इसमें एक सब्सिडी इंट्रोड्यूस किया है। सब्सिडी मीन्स कि आपने गवर्नमेंट से 25 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन और 22.5 लाख रुपए गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी आपको 15% का सब्सिडी मीन्स कि एडवांस में ही आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आपको जो रिटर्न करना है वो करीब 17.5-17 लाख के आसपास ही रिटर्न करना है। वो 15% का रिबेट आपको मिल जाएगा, राइट। सो एडिशनल बेनिफिट हमारे पास करीब करीब 4 लाख के आसपास का ये एडिशनल बेनिफिट हमें गवर्नमेंट से मिलता है। लेकिन यही इंडस्ट्री अगर आप रूरल एरियाज में लगाना चाह रहे हैं, ओके, लेट्स से किसी विलेज में या ऐसा जो अर्बन जोन में नहीं आता है कोई एरिया, अगर जैसे मैं हिसार के आसपास की बात करूं तो बालसमंद ये अर्बन एरियाज में नहीं आता है, हांसी के आसपास का एरिया ये अर्बन एरियाज में नहीं आता है, तो ऐसे किसी एरिया में अगर आप लगाने जा रहे हैं तो आपको 25% का सब्सिडी मिलेगा। सेकंड केस, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि SC ST या OBC कैटेगरी, तो भी आपको जो सब्सिडी बेनिफिट है वो 15% और 25% ही मिलेगा। ओके, थर्ड केस, अगर आप माइनॉरिटीज में आते हैं, लेट्स से यू आर फीमेल, यू आर वीमेन, ओके, आप एक्स सर्विस मैन हैं या आर्मी से रिटायर्ड आप हैं या आपके फैमिली मेंबर्स है जिनके नाम पर आप ये लोन लेना चाहते हैं या फिर आप काम शुरू करना चाहते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप किसी हिली एरिया से या बॉर्डर एरिया, लेट्स से कि लेह लद्दाख या उत्तराखंड में पिथौरागढ़, ओके, कश्मीर एरिया, बांग्लादेश बॉर्डर, आसाम, गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका ओनर कंट्रीब्यूशन केवल 5% का रह जाएगा। गवर्नमेंट आपको 95% का लोन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर भी रेट ऑफ सब्सिडी है वो इंक्रीज हो जाएगा, अर्बन में 25% और रूरल में 35%। सिक्स पीपल एंटरिंग टू द वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में शायद कोई वेट कर रहे हैं सर, एक बार आप उन्हें अप्रूवल दे दीजिए। सो इस फील्ड में हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्री कवर होती है? बेसिकली एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग। सो अगर आप एग्रो से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट बेस्ड कोई आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, या हैंडमेड पेपर या फाइबर, मिनरल बेस्ड आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, पॉलीमर और केमिकल से रिलेटेड, केमिकल जो कि नॉन टॉक्सिक है, ओके, रूरल इंजीनियरिंग, लेट्स से कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, सो इसमें हमारे खेतों में यूज होने वाले इक्विपमेंट से रिलेटेड है, या बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज अ वेरी गुड फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी में अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, सो ये सब फील्ड इसमें कवर होते हैं। केवल जो कवर, इसके अलावा भी बहुत सारे और फील्ड हैं, जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, या मैकेनिकल से रिलेटेड कोई चीज आप शुरू करना चाह रहे हैं, केमिकल आर्किटेक्टिंग से रिलेटेड कोई चीज आप शुरू करना चाह रहे हैं, सो ये सर्विस सेक्टर में आएंगे, जहां पर आप सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। केवल ध्यान रखने की जरूरत है कि जो नेगेटिव लिस्ट में है गवर्नमेंट की, जो जिसमें कि ये फंडिंग आपको नहीं मिलेगा, कि नॉन वेज से रिलेटेड, लीकर या टबैको रिलेटेड जो स्मोकिंग की चीजें हैं, या फिर जो जिसे हम कहते हैं कि ड्रग्स हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई काम शुरू आप करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये फंडिंग नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी भी तरीके का बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं जहां से कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, सो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट टू द खादी विलेज। ओके, सो खादी का हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिस है, तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट करके एक फाइल वहां पर उन्हें दे सकते हैं। ऑलरेडी बताया कि ये सब फाइल का फॉर्मेट खादी की वेबसाइट पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड वे में, इवन आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि अगर आप कोई सैलून शुरू करना चाहते हैं, सैलून चेन शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पर ऑलरेडी DPRs बने हुए हैं और उनके लिए फंडिंग कितना असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये सब चीजें भी आपको वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपके सेंटर्स हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर है, सिरसा में अलग है अपना, सो हर डिस्ट्रिक्ट में आप सेंटर्स में जाकर के भी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ये सब ऑफिसेज हैं पंजाब और चंडीगढ़ के। तो अभी आप लोग केवल सुन सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि ये एड्रेसेज आप लिखना चाह रहे हैं तो ये पीपीटी मैं आदित्य सर के साथ शेयर कर लूंगा, आप डायरेक्टली उनसे ले भी सकते हैं। ओके, हरियाणा में मैंने आपको बताया कि केवीआईसी का हेड ऑफिस अंबाला में है और दूसरा पंचकुला में है, हिमाचल का अलग है, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं। ओके, दिस इज स्टैंड अप इंडिया, दिस इज वेरी यूनिक स्कीम फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, वीमेन एंटरप्रेन्योर जो अपना काम शुरू करना चाहती है। अगेन यू वुड फील वेरी फैसिनेटिंग कि है ना, वीमेंस, अभी जैसे मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं, अभी मैंने आपको बताया कि मैं प्रगति मैदान में हूँ और मैं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो एमएसएमई में सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट आगे निकल करके आए हैं वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बाद दीज आर वीमेन एंटरप्रेन्योर। सो हाथों से जितनी भी तरीके का काम किया जा सकता है उसमें वीमेन ने एक महारत हासिल किया है। एंड पिछले केवल 4 साल के एफर्ट में करीब 25% का इकलौता रेशो फीमेल्स का है। Out of 100 startup, 25 startup are registered by female. This is a huge number actually. Okay, so इस स्कीम में स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और वीमेन उन्हीं को कैटेगराइज किया गया है। सो दिस इज वेरी इजी टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर असिस्टेंट डिपार्टमेंट, लेट्स से एमएसएमई, खादी बोर्ड, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट मिशन। ओके, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं। मार्जिन मनी 25% सब्सिडी आपको इसमें मिलेगा। ओके, किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर के जिस दिन आप अपना कंपनी रजिस्टर करने जा रहे हैं, ओके, आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर के आई वुड सजेस्ट कि केवल गवर्नमेंट बैंक, पीएनबी, एसबीआई, आरबीआई, ओके, सीबीआई काइंड ऑफ, कैनरा बैंक, इन्हीं बैंक में जाकर के आप अपनी से इजीली ये चीजें मिल जाएंगी। हमारे देश में करीब 1.25 लाख बैंक की ब्रांचें हैं और 2.5 लाख का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा कि 2.5 लाख वीमेंस को हम लोग ये लोन दे। केवल 36 महीने का टारगेट था और 36 महीने में ये टारगेट कंप्लीट भी हुआ। तो उसके बाद से फिर से अभी लॉकडाउन में सिडबी ने इसी स्कीम को रीफाइनेंस करने के लिए 10,000 करोड़ का एक अलग से फंड प्रोवाइड भी किया। सो इस स्कीम के मेन फीचर्स क्या है, मैंने बताया कि 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के बीच का आप कोई भी लोन ले सकते हैं आपके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। कंप्लीटली हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको इस स्कीम में दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। जब आप एक बार इसे फाइल करेंगे तो आप मल्टीपल पैरामीटर से होकर के निकलेंगे। हर जगह पर आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। क्रेडिट गारंटीज की सपोर्ट आपको वहां पर दिया जाएगा। किसी भी तरीके से आप कोई पोर्टल है जैसे जेम पोर्टल है या अदर जो पोर्टल्स हैं जहां पर आप अपने सामान को बेच सकते हैं या फिर जहां से आप बिजनेस गेन कर सकते हैं, कोई एग्जीबिशंस हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन है जहां पर ट्रेड पोर्टल्स हैं जहां से आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म पर आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि आप यहाँ से अपना बिजनेस भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एरियाज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया एग्री से रिलेटेड या फिर जिसमें जो नॉन पोल्यूशन चीजें हैं, हाथों से आप चित्रकारी कर रहे हैं, आप सीनरीज बना रहे हैं, आप पेपर आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, आप बैम्बू से कोई चीज बना रहे हैं, राइट। सो कपड़े से आप कोई काम कर रहे हैं, सो इस टाइप के सेक्टर्स में गवर्नमेंट ज्यादा एनकरेज कर रही है लोगों को। अभी तक का टारगेट था कि 84,000 CR हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें सिडबी ने 10,000 करोड़ और एड ऑन किया है। गवर्नमेंट ने टारगेट केवल 2 साल में ही अचीव कर लिया था, तीसरे साल में तो इसे एड ऑन किया गया है। अभी तक 21,177 करोड़ के लोन्स अप्रूव हो चुके हैं और मैनी आर्स इन द पाइपलाइन। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मैं आप लोगों को अभी केवल गवर्नमेंट की स्कीम बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा कि अगर इन स्कीम में हम नहीं जाना चाहते या फिर हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम क्राउड फंडिंग को या फिर वेंचर कैपिटल को या फिर इन्वेस्टर्स को रीच कर सकते हैं। ओके, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इसे 3 अलग अलग कैटेगरी में शिशु मुद्रा, लेट्स से कि हम कोई
सब्जी का काम शुरू करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ओके, तो उसमें 10, 15, 20, 25,000, 50,000 तक की एक इन्वेस्टमेंट होती है। सो अगर कोई छोटा सा काम हम शुरू करना चाहते हैं, लेट्स से कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप कोई प्रिंटिंग शॉप शुरू करना चाहते हैं, आप कोई कैफे शुरू करना चाहते हैं, है ना, आप कोई स्टेशनरी का काम शुरू करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ में अर्न व्हाइल यू लर्न को भी प्रोसीड कर सके। ओके, तो उसके लिए शिशु मुद्रा योजना है, इसमें 50,000 तक का आप लोन गवर्नमेंट से ले सकते हैं, किसी भी बैंक में जाकर के आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किशोर मुद्रा है, लेट्स से कि आप कोई शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई जनरल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई आप मॉडर्न ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करके और वहां से सेल करना चाहते हैं, लेट्स से कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बनियन शिको काइंड ऑफ। सो उसके लिए करीब 50,000 से 5 लाख तक का एक किशोर मुद्रा लोन ये सैंक्शन किया गया। तरुण मुद्रा, जिसमें कि आप थोड़ा सा बड़े लेवल पर, ओके, मॉडर्न ट्रेड का एक एडवांस वर्जन पर आप जाना चाहते हैं, या फिर आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा सा हायर साइड में है, या फिर आप किसी काइंड ऑफ की कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई आप खरीदना चाहते हैं, ओके, मशीनरी खरीद करके और फिर आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 लाख से लेकर के 10 लाख, ये सभी कोलेटरल फ्री लोन्स हैं। इसमें आपको कोई अपनी जमीन की गारंटी नहीं देनी है, कोई आप लोगों को कुछ गिरवी नहीं रखना है, कोई आपको गोल्ड लोन नहीं है, ये सब विदाउट कोलेटरल लोन्स है। ओके, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि स्किल इंडिया हम लोगों को स्किल करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट बहुत किया, लेकिन हम लोगों ने उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं लिया है। सो 3 डिपार्टमेंट जो इसमें काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड अगर कोई सेंटर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने एनसीएसडी, एनएसडीसीबी और एनएसडीसी, ये 3 बॉडी है जो काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई नई स्किल है आपके माइंड में जिसे आप लेकर के बहुत एग्रेसिव हैं, लेट्स से कि किसानों को अगर हमें कुछ सिखाना है, लेट्स से कि उन्हें गेंदे के फूल की खेती करनी सिखानी है, जो कि बिहार में ज्यादा होती है, हरियाणा में बहुत कम होती है, जैसे कि लेवेंडर की खेती करना हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, तो आप ऐसी नई किसी भी चीज को एनएसडीसी के सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डीपीआर बना करके एक पूरा मेमोरेंडम बना करके आप उन्हें दे सकते हो, और आप उनसे स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड एक सेंटर के लिए दे सकते हैं। इसमें डायरेक्टली एनएसडीसी आपको सपोर्ट करेगा, इनिशियल फंडिंग आपका होगा नो डाउट, लेकिन उस इनिशियल फंडिंग में फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया, तो गवर्नमेंट आपको वो 10 लाख रुपए आपने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाया, लेकिन गवर्नमेंट आपको 10,000, 12,000, 15,000 रुपए पर हेड पर पर्सन के अकॉर्डिंग वो आपको लेटर ऑन पे करेगा। सो दिस इज ह्यूज अमाउंट। ओके, सो इसमें इनिशियल फंडिंग हमारा है, लेकिन बाद में आपको गवर्नमेंट से ये सब चीजें मिल जाती है। संपदा लोन, ये दिस इज वेरी नाइस स्कीम। अगर कोई एग्रो में स्पेशली काम शुरू करना चाहता है, तो एग्रो मशीन प्रोसेसिंग, मरीन प्रोसेसिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, इस स्कीम को क्लस्टर बेस में डिवाइड किया गया, ताकि जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, जो भी फूड के फील्ड में काम करना चाहती है, यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि हमारे हरियाणा में करनाल में एक फूड टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है, देश का सबसे बड़ा फूड टेक्नोलॉजी पार्क है। सो फूड से रिलेटेड, फूड में आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई पेटेंट आप लेना चाहते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे कि केवल प्लग एंड प्ले का काम हो जाए, जो छोटे वेंडर्स हैं उन्हें कैसा मशीन चाहिए, जैसे आप लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि गन्ने का एक मशीन आया, गन्ने का जूस निकालने का। सो वो मशीन ऐसा है कि उसमें ना तो हाथ से कोई काम करना है, ना कोई जनरेटर का काम करना है, जस्ट उसे प्लग इन किया, उसके अंदर गन्ना डाला, साइड में जूस निकल गया, वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई भी आकर के बाहर मॉल में खड़ा होकर भी गन्ने का जूस पी सकता है। अदरवाइज गन्ने का जूस पिलाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, किसी रेहड़ी पर ही हम पिला सकते थे, क्योंकि उसके आसपास में बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाने लग जाती है। सो ये मशीन है, इसमें से जो गार्बेज निकलेगा गन्ने का, तो वो गार्बेज भी उसे साइड में लेकर के चली जाएगी, और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ क्या। सो इस टाइप का अगर कोई नई मशीनरी वर्क, ओके, नई टेक्नोलॉजी, प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये एक
बहुत शानदार स्कीम गवर्नमेंट अभी संपदा के नाम से लेकर के आई। इसका लॉन्चिंग 2017 में हो गया था, बट इसका एग्जीक्यूशन अभी लास्ट 1.5-2 साल पहले ही होना शुरू हुआ है। सो ये सब चीजें हैं जो स्कीम के अंडर कवर होती है। सो मेगा फूड पार्क, अगर आपका एक कंसोर्शियम मिल करके कोई मेगा फूड पार्क बनाना चाहता है तो मैक्सिमम 50 करोड़ का असिस्टेंस आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है, जिसमें कि 50% ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि 100 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से 50 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सब्सिडी बेस में है। दिस इज ग्रांट काइंड ऑफ। ओके, एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं किसी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, फॉर एग्जांपल शुगर मिल जैसे आप लगाना चाहते हैं, गुड़ जैगरी में आप कोई काम करना चाह रहे हैं, दालें प्रोसेस करने के लिए आप कोई काम करना चाह रहे हैं, राइस के लिए आप कोई काम करना चाह रहे हैं, है ना। सो ये प्रोसेसिंग यूनिट्स है। ओके, हम किसी चीज की लाइफ एनहांस कर रहे हैं। ओके, सो इस टाइप की अगर कोई यूनिट का आप एक्सपेंशन में लेकर के जाना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का असिस्टेंस, जिसमें कि 35% ग्रांट आपको मिलता है। कोल्ड चेन या फिर किसी भी कोल्ड चेन में वैल्यू एडिशन आप करना चाह रहे हैं कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसमें 10 करोड़ तक का आपको ये एक ग्रांट मिल रहा है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर वाइज आप काम करना चाह रहे हैं। सो अभी गवर्नमेंट ने क्लस्टर बनाए हैं, वो क्लस्टर मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने ओडीओपी का नाम सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से। सो हर डिस्ट्रिक्ट को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया गया है जो उसकी खासियत है। ओके, सो हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट दिया गया कि आप इस प्रोडक्ट में महारत हासिल करो, आप इस प्रोडक्ट में पीएचडी करो, और यहाँ के लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसी में स्किल करो। उनसे रिक्वेस्ट करो कि इसी पर्टिकुलर फील्ड में वो ग्रोथ करना शुरू करें। उनसे रिक्वेस्ट फील्ड में इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू करे। उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो पर्टिकुलर इसी फील्ड में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करना शुरू करे। सो हर डिस्ट्रिक्ट को, जैसे हिसार को कोई एक प्रोडक्ट मिला है, सिरसा को कोई एक प्रोडक्ट मिला है, रोहतक को मिला है, भिवानी को मिला, रेवाड़ी को मिला। ओके, सो ये क्लस्टर बेस पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से ये स्कीम चलना शुरू हुई है। इसका फायदा क्या है कि अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाकर के एक फाइल उनके सामने पेश करते हैं कि सर मैं ये काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट को अलॉट भी हुआ है, तो आपको बहुत इजी तरीके से उसमें रजिस्ट्रेशन, स्कीम में एंट्री, इसमें फंडिंग असिस्टेंट, आप कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइडलाइन के साथ में हैंड होल्डिंग भी प्रोवाइड होगा। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जैसे एचआरडी रिलेटेड आप इंप्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, आपको अपना काम शुरू करने के लिए कोई आरएनडी करना है, ऑलरेडी आप कोई काम कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कोई काम आपकी जगह पर हो रहा है, आप उसमें फर्दर इन्वेंशन करना चाहते हैं, कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, राइट। सो आरएनडी इन फूड प्रोसेसिंग, या फिर प्रमोशनल एक्टिविटी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन में आप ग्लोबल लेवल पर या कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करना चाहते हो कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इस नाम पीपल शुड कम एंड बाय फ्रॉम मी। सो इस तरीके कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करना चाहते हैं। उसके अंदर फर्दर कोई स्टडी करना चाहते हैं, मार्केट एनालिसिस करना चाहते हैं, मार्केट सर्वे करना चाहते हैं, ओके, तो अलग से 5 लाख का एक फंडिंग असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 5 लाख का एक एडिशनल ग्रांट परसेंटेज डिसाइड किया गया है, राइट। ये कुछ चीजें जो ऑलरेडी मैं अपने वर्ड्स में बता चुका हूँ। सो मैं पेजेस को आगे स्किप कर रहा हूँ। राइट, सो वेंचर कैपिटल फंड, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना ग्रेजुएशन में कुछ काम करते हुए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपने अपना कोई स्टार्टअप शुरू किया। ओके, स्टार्टअप शुरू करने के बाद आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज की है? आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फंडिंग आप लोगों को कैसे मिलेगा? आई वुड नेवर से कि आप कभी भी इस थॉट के साथ अपना स्टार्टअप शुरू करो कि आप थोड़ा सा काम करोगे, 2-4-5 महीने में आपको लोन मिल जाएगा, या फिर आप किसी इन्वेस्टर को अपना प्रपोजल दोगे, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, या फिर आप किसी बैंक में जाओगे, वहां से आपको कोई सब्सिडी बेस्ड सिस्टम, जैसे ये जो स्कीम्स मैंने बताई,
अगर केवल आप इसी बिहाफ पर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मत कीजिए। इसमें आप अपने आप को ही धोखा देने का काम करोगे। अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो सोसाइटी में एक बज क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी में एक वैल्यू एडिशन करने के लिए, सोसाइटी में किसी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने या रिमूव करने के लिए आप एफर्ट कीजिए। अगर आप ये दोनों तीनों चीजें करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड। लेकिन केवल कोई लोन लेने के लिए अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो यू विल गेट फेल। हम हमेशा कहानी सुनते हैं कि ये स्टार्टअप सक्सेस हो गया, वो स्टार्टअप सक्सेस हो गया, लेकिन हम कभी नहीं सुनते कि ये स्टार्टअप फेल हो गया। दिस इज मतलब ये एक जनरल थ्योरी है कि हमें मोटिवेट करने वाली चीजें बताई जाती है, लेकिन एक बिजनेसमैन को हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर कल को मुझे फेल्योर फेस करना पड़ जाए तो उसके बाद क्या होगा। राइट, सो फेल्योर फेस करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस फेल्योर को फेस करना ये सबसे बड़ी त्रासदी होती है। उस फेल्योर को फेस करने के लिए हमें पहले तैयार होना चाहिए और अपने आप को मान करके चलो। जो जनरल मैं हमेशा अपनी बातों में बोलता हूँ, एक बात को आप मान करके चलो कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आज काम शुरू किया और अगले 1 महीने बाद आप उससे बहुत अच्छा अर्न करना शुरू कर देंगे तो आप यू आर एट द रॉन्ग ट्रैक। इसके लिए अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज आई वुड से सॉरी, नो वन इज देयर टू वेलकम यू। लेकिन हाँ, अगर आप अगले 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए अपना दिन और रात, अपना नींद और चैन, इस सब को छोड़ करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के एफर्ट करने के लिए रेडी है तो बिजनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है, स्टार्टअप में आपका स्वागत है। अगले 6 महीने, अगले 8 महीने शायद आपको अपने लिए सैलरी देखने का मुंह नहीं मिलेगा, शायद अगले 6-8 महीने आपको अपनी पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी, शायद अगले 6-8 महीने आप 9 बजे से 5 बजे की जो एक बड़ी शानदार वर्किंग आवर्स होते हैं, शायद आपको सुबह 9 बजे से लेकर के अगले दिन 1-2 बजे तक रात को काम करने को मिलेगा। सो यहाँ पर बहुत ट्रेजेडी है, बहुत, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा। ठीक है, मैं किसी को डिमोरलाइज करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने एफर्ट को लगाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो everyone is there to welcome you with the broad hands, with the wide hands. Okay, so be ready for that. मैं वापस I would like to come again back to my topic कि वेंचर कैपिटल क्या है। वेंचर कैपिटल है अगर आप अपना एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं, उसे लॉन्च करते हैं, उसका सक्सेस रेट का एक परफेक्ट सा फाइल आप तैयार करते हैं तो आप किसी भी वेंचर कैपिटल कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने भी ये IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड एक कंपनी ऐसा एस्टेब्लिश किया ताकि जो नए यंगस्टर्स हैं उन्हें एफर्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, लॉयड सेक्टर है, आप सभी इस स्कीम के लिए मींस की एलिजिबल करते हैं। बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, आपके पास एक वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए, आपके पास एक वे ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि आप किस तरीके से इस काम को करेंगे और इस काम से कितने लोगों को बेनिफिट होने वाला है। स्पेशली इस स्कीम में वीमेंस को और जो फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबल्ड है या फिर SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें इसमें प्रेफर किया गया है। ओके, 20 लाख से लेकर के 15 करोड़ तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस, 6 साल का मोरेटोरियम पीरियड है इसमें। अगर 5 करोड़ तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस आप लेना चाहते हैं तो 25% of the total fund will be from the promoter side, means ki from your side, and 75% of funding support will be provided from the venture capital. Okay, the second thing ki financial assistance above than 5 crore अगर आप जाना चाहते हैं, let's say up to 15 crore, तो 25% part would be given by bank. Okay, 25% would be of yours and the other 50% will be provided by from the venture capital. वेंचर कैपिटल किस तरीके से काम करता है?
लेट्स से कि आपके पास 100% शेयर है या आप 2 डायरेक्टर हैं, आपके पास 50-50% शेयर है, सो वो आपसे कुछ शेयर्स ले लेंगे। ओके, लेट्स से 2%, 5%, 10%, 15% और 50% मैक्सिमम, 49% मैक्सिमम, सॉरी। तो 49% मैक्सिमम शेयर वो आपसे ले लेंगे, ताकि एक सिक्योरिटी उन्हें रहे, और वो जो पैसा आपके ऊपर लगा रहे हैं उसका एक मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली रहे। सो इस तरीके से वेंचर कैपिटल काम करते हैं, ओके, आपको अपग्रेड करने के लिए। सो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो पैसा आपने लिया है वो 8% पर एनम है, अभी इसे रिड्यूस करके 7.5% भी कर दिया गया है, और बट ये एग्जीक्यूशन में अभी नहीं आया। और वीमेन और डिसेबल्ड जो उनके लिए पहले 7.75% था, उसे रिड्यूस करके 7% कर दिया गया है, बट ये अभी एग्जीक्यूशन में नहीं आए। पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो दिस इज वेरी मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट। SIDBI, this is one of the bank that is run by government. So ये directly small industry, जो rural based industries हैं, उन्हीं को फंड करने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें एक प्लेस प्रोवाइड करने के लिए एक बैंक बनाया गया है। दिस बैंक is working from last many couple of the year. So SIDBI, Small Industry Development Bank of India. कंपोजिट लोन, अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं इन रूरल एरियाज, लेट्स से कि आप मशरूम की खेती शुरू कर रहे हैं और मशरूम के लिए आपको एक बाउंडेड एरिया बनाना है, ओके, सो उसके लिए मैक्सिमम कंपोजिट लोन होता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करना चाहते हैं, राइट। सो उसके लिए आपको अप टू 25 लाख का एक फंड विदाउट एनी कोलेटरल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। सिडबी में जाकर के आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोडिसैप में काम करना चाहते हैं, सो कोडिसैप के लिए आपको एक लैब डेवलप करना पड़ेगा, ओके। प्रोसेसिंग यूनिट का काम करना चाहते हैं, उसमें आप R&D करना चाहते हैं, ओके। आप पोल्ट्री में कोई काम करना चाह रहे हैं, या फिर आप लेट्स से बिस्किट बनाने के लिए, या फिर ऐसे डेली रूटीन के आइटम बनाने के लिए आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, सो पर्टिकुलर उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको ये कंपोजिट लोन अप टू 25 लाख का आपको सिडबी से इजीली मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक टर्म्स है कि आपको मैक्सिमम विद इन 3 ईयर ऑफ टाइम पीरियड वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। विद इन 3 ईयर आपको सारा काम कंप्लीट करना है। सिंगल विंडो अप टू 2 करोड़ का, जैसे ही आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर मशीनरी, या फिर फर्दर लेवल अपग्रेड करने के लिए आपको चाहिए, तो आपको सिंगल विंडो 2 करोड़ तक का फंडिंग असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिल जाता है। या सो ये MSME का एक स्कीम है जिसमें सब्सिडी बेस्ड कुछ फंडिंग स्टार्टअप्स को दिया गया। आप कोई भी स्टार्टअप अगर अपना रजिस्टर करवाते हैं, सबसे पहले आप केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ही जाएं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, क्योंकि इसका रिकॉग्निशन थ्रू आउट ग्लोबल है, इसका एक फेथ ग्लोबली है, राइट। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं तो अच्छा रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि या तो मिनिमम LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है, 2 डायरेक्टर होना चाहिए। Any 2 friend of you can start, husband wife can start, brother sister can start, any 2 director you are required with a 50-50% partnership, okay। या फिर प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिए भी आप लोगों को 2 डायरेक्टर की जरूरत है, 2 बंदों की जरूरत है, ओके। सो जैसे ही आप अपना कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, इमीडिएटली अपने CA को बोल करके आप सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को जरूर रजिस्टर करवाए। वहां से आपको DPIIT नंबर ये मिलेगा। ये DPIIT नंबर क्या है? इस DPIIT रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर आप किसी भी जगह पर जाकर के किसी भी स्कीम का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। वो स्कीम्स क्या है? आप फंडिंग लेना चाहते हैं, आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट की प्रोमोशनल एक्टिविटी में पार्ट करना चाहते हैं, आप किसी इंक्यूबेशन सेंटर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप कोई सीड फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप वेंचर कैपिटल को अप्लाई प्रोसीड करना चाहते हैं, राइट। सो तीसरा क्या कि अगले 3 साल के लिए, स्टार्ट फ्रॉम द डे 1 जब आपने रजिस्टर किया स्टार्टअप इंडिया, वहां से लेकर के अगले 3 साल तक का आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर विंडो मिलेगा। आप कोई पेटेंट लेना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी और हैंड होल्डिंग भी, राइट। आप कोई ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा,
और हैंड होल्डिंग भी किया जाएगा। ओके, आप अपने शेयर्स को आईपीओ जनरेट करना चाहते हैं, मींस कि एनएसडीएक्स में या फिर किसी अदर सेंसेक्स में आप अपने कंपनी को पैनलिस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको गवर्नमेंट को एज ए स्टार्टअप सपोर्ट करता है। पहले इस कैटेगरी को केवल रखा गया था कि जो लिमिटेड कंपनी है वही एनएसडीएक्स में या फिर सेंसेक्स में आ सकते हैं, अपना आईपीओ दे सकते हैं। बट अब लिमिट केवल 10 करोड़ तक का कर दिया गया है कि अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू केवल 10 करोड़ भी है तो भी वो एनएसडीएक्स में अपने आप को लिस्ट करवा सकता है। ओके, पब्लिक पार्टनरशिप वो ले सकता है, राइट। सो इस स्कीम में अगर कोई एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जा रहा है। हर जगह पर आप ध्यान रखिए, वीमेन, एससी और एसटी को अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जा रहा है, जनरल कैटेगरी को भी अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जा रहा है, लेकिन वहां पर केवल परसेंटेज को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, सो कोई मशीनरी आप खरीद करके काम करना शुरू करना चाह रहे हैं तो ये सबसे इजी लोन है एमएसएमई का। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, डीआईपीपी नंबर आपको मिल जाएगा। इसके भी यहाँ पर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहां के एमएसएमई डिपार्टमेंट में जाकर के एप्लीकेशन लगा सकते हैं, आपको वो डिपार्टमेंट हैंड होल्ड करेगा। ओके, मेरी तरफ से ये सब बातें कंप्लीट हुई कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स दी जा रही थी। नाउ जस्ट अ मिनट, या सो अभी कुछ ऐसी चीजें जिसमें कि स्टूडेंट लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे नहीं जा पाते, वो क्या है, वो एक हमारा डर है या फिर वो हमारा हेजिटेशन है कि हम हर किसी से जाकर के वॉक एंड टॉक नहीं कर पाते हैं। दोस्त, अगर आप लोगों को काम शुरू करना है, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं जब बीटेक कर रहा था 2006-10 बैच में मैंने बीटेक किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। सो सेकंड ईयर में ही मैंने एक प्रिंटर परचेज किया, 8,500 रुपए का प्रिंटर परचेज किया। और मेरी क्लास के जितने भी बच्चे थे सभी को, उस टाइम 2006 से 10 में हर जगह पर प्रिंटर नहीं होते थे, बहुत कम फोटो कॉपी की दुकानें या शॉप हमें कहीं मिल जाती थी, पूरे सिटी में मैक्सिमम 2, 3 या 4। तो मैंने एक प्रिंटर परचेज किया 8,500 रुपए का, और मेरी क्लास के जितने भी बच्चे थे उन्हें हर सब्जेक्ट का 1 महीने में एक असाइनमेंट सबमिट करवाना होता था, हार्ड कॉपी। तो मैंने कहा कि ठीक है, प्रिंट आउट मैं ला करके दूंगा, 10 रुपए का एक पेज प्रिंट आउट। सो मैंने मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा केवल उस 8,500 के प्रिंटर से निकल। यू वुड फील कि मैं क्या बात आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने एजुकेशन लोन लिया था और उस एक प्रिंटर से मैंने अपना करीब 50% एजुकेशन लोन कंप्लीट कर दिया। सो अर्न वाइल यू लर्न। ओके, हमारी आज के टाइम आपकी केवल डिग्री की जरूरत नहीं है, आज के टाइम जरूरत है आपके स्किल्स की, आज के टाइम जरूरत है आपकी बोल्डनेस की, आज के टाइम जरूरत है मल्टीटास्किंग होने की, आज के टाइम जरूरत है कि आप कितना अवे फ्रॉम द ट्रैक होकर के काम कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में इंटरव्यू लेने आ रही है, मैं 6 साल तक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल मैंने देखा है। सो मुझे पता है कि बच्चों की सोच कहाँ तक होती है, बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं, बच्चे किस लेवल तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, सो यू पीपल हैव अ कैपेसिटी कि आप कॉलेज टाइम में रहते हुए किसी भी लेवल को रीच कर सकते हैं। जस्ट वी नीड अ पुश, वी नीड टू स्टार्ट, वी नीड टू टेक अ स्टेप अहेड। केवल एक स्टेप लेने की जरूरत है हमें। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आप इधर उधर मत देखो, आप केवल अपने सराउंडिंग का एक लिस्ट बनाओ। दिस इज वेरी इजी वे, वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कोई यूनिक प्रोजेक्ट बनाऊं और उसे पेटेंट के लिए अप्लाई करूं, राइट। पेटेंट के लिए केवल आपका जो फाइल लगता है 25,000 रुपीज, जिसमें से कि अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर हो जाते हैं तो वो 25,000 रुपए भी आपको गवर्नमेंट से रिफंड हो जाते हैं, राइट, जैसे ही आपका पेटेंट आ जाता है। बल्कि आपको पब्लिसिटी और अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से 3-4 लाख रुपए का फंडिंग मिलता है। ओके, सो आप कॉलेज टाइम में रहते हुए कोई ऐसा मोटर व्हीकल बनाना चाहते हैं, कोई ऑटोमोबाइल यूनिट बनाना चाहते हैं, कोई मशीन बनाना चाहते हैं, कोई एग्रो बेस्ड इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं, कोई ऑटोमोबाइल बेस्ड समथिंग, या फिर कोई
हाउस होल्ड बेस्ड कोई इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं, आप कोई नई चीज जो कि समस्या को खत्म करे, राइट। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 लाख रुपया, बीइंग अ स्टूडेंट 1 लाख रुपया आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन अगर आप केवल अपनी क्लास में ही देखेंगे तो 60 बच्चे हैं, मीन के 60 आपके दोस्त हैं, उनमें से 30 दोस्त आप सपोर्ट करेंगे या 20 दोस्त आप सपोर्ट करेंगे, सो 2-2 हजार रुपए इकट्ठा करना, दिस इज अ क्राउड फंडिंग। ओके, सो ये क्राउड फंडिंग करना, दिस इज वेरी इजी। उसके बदले में आपको केवल 50 रुपए का एक बॉन्ड पेपर उस कंट्रीब्यूटर को देना है कि 2,000 रुपए के बदले मैं ये बॉन्ड दे रहा हूँ, कल प्रोसीड करती है या बड़ी होती है तो आपका उसके अंदर इतना परसेंटेज शेयर रहेगा। ये कोई भी एडवोकेट या लॉ फर्म या सीए आपको बहुत इजीली बता देगा कैसे हो सकता है। ओके, सो 20 लोगों ने 2-2 हजार रुपए इकट्ठा किया, 40,000 रुपए आपके पास वन शॉट में एक फंडिंग असिस्टेंस आ गया। फिर आपके फादर है, ब्रदर है, कजन है, अंकल है, आंटी है, चाचा है, ताऊ है, ये सब अगर आप उनको अप्रोच करके कहें कि मैं ऐसे ऐसे काम शुरू करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे आपसे 5,000 रुपए का एक फंडिंग चाहिए। इसके बदले देखिए, अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको सबसे पहले अच्छा पेपर वर्क करना होगा, आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, राइट। आपको किसी भी टाइप के चीज मीन्स कि उसके अंदर आपको कोई एहसान नहीं लेना है, आपको किसी से खैरात नहीं लेनी है, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, आपको हर किसी के सामने अपना प्रपोजल रखना है। बी प्रोफेशनल फॉर एवरीथिंग, आपको प्रपोजल रखना है। अगर वो आप कितने अच्छे तरीके से अपना प्रपोजल रख पाते हैं, यही चीज डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर आप कोई चीज बनाना चाह रहे हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बिजनेस कर कैसे पाएंगे? आपकी शुरुआत आपकी क्लास की। मुझे याद है कि मेरे स्कूल में एक कंपटीशन होता था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल का, कि हर साल एक फंक्शन होता था, उस फंक्शन में हमें कोई ना कोई स्टॉल लगाना होता था। उस स्टॉल में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना मैन पावर यूज किया, कितना एफर्ट किया, कितना एरिया आपने यूज किया, ओके, फिर उसके बाद कितना अर्न किया और उसमें से कितना प्रॉफिट आपने गेन किया, इसके बाद हमें एक प्रेजेंटेशन देना होता था। सो टचवुड 3 साल कॉन्टिन्यूसली मुझे उसमें अवार्ड मिला। बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगा करके, ओनली 100, 200, 300 रुपया लगा करके मैंने 3 साल अलग अलग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए। और मुझे आज भी याद है कि किसी में 3,500, किसी में 3,200 रुपए, किसी में 2,800 रुपए मैंने अर्न किया। तो प्रॉफिट रेशियो वाज अराउंड 700 to 800, 1,100% मैंने कई बार गेन किया। सो यही चीजें हमारी स्टूडेंट लाइफ की, जो हमें स्टूडेंट लाइफ में कर देनी चाहिए, हमें जरूर शुरू करनी चाहिए। और स्टार्टअप के लिए हर चीज एक्सपेरिमेंट है, स्टार्टअप के लिए हर चीज एक नया दिन है, स्टार्टअप के लिए हर एक चीज जो भी उसके सामने आ रही है वो एक नया एनालिसिस है, राइट। सो हर चीज को ऑब्जर्व करना अगर हम शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हम अपनी जो हम शुरू करना चाह रहे हैं उसे दुनिया के सामने एक नए रूप में लाने से कोई नहीं रोक सकता है, जस्ट आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू करें। सो क्राउड फंडिंग, ये जो 1 लाख रुपया आपने उस क्राउड से इकट्ठा किया, केवल 30, 40, 45 लोगों की मदद से, और उनको बदले में आपने एक बॉन्ड पेपर दिया कि अगर फ्यूचर में कामयाब मैं होता हूं तो डेफिनेटली आपका इसमें इतना परसेंटेज होगा। दिस इज वन ऑफ द क्राउड फंडिंग, ओके। एंड यू वुड फील मेस्मराइजिंग कि आपने इनडायरेक्टली ये जो 40-50 लोगों से हेल्प लिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया, आपने इनडायरेक्टली ये 40-50 मुंह अपने लिए खड़े कर लिए, जो कि आपके लिए इनडायरेक्टली मार्केटिंग करेंगे, इनडायरेक्टली पब्लिसिटी करेंगे अगर आप कोई चीज लॉन्च कर देते हैं। सो देखिए, आपको कहीं पर मैन पावर अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने उनसे पैसा भी लिया और आपने लिए अपने मार्केटिंग का भी एक तरीका अपने लिए डेवलप किया। सो दीज आर वेरी यूनिक थिंग, ओके। इसके बाद जैसे ही आपका वो एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, मार्केट में वेंचर कैपिटल है, देयर आर लोट ऑफ कंपनीज, देयर आर एंजल इन्वेस्टर जिनके पास पुश्तैनी पैसा बहुत रखा हुआ है। आप किसी को भी जाकर के अप्रोच, रेडी टू इन्वेस्ट, एक्चुअल में एंजल इन्वेस्टर आर वेटिंग फॉर यू पीपल, प्लीज कम टू एंड गिव अस द प्रपोजल, वी हैव लॉट ऑफ मनी टू एक्सपेंड ऑन यू, कि आप लेकर के तो आओ बच्चा लोग, हमारे पास पैसा पड़ा है।
एंड लिटरली पैसा पड़ा है। चलो मैं आपको आज एक प्रपोजल देता हूँ, मेरे पास 2 आइडियाज है। एक आइडिया जिसे मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, राइट, पिछले 1.5 साल से हम लोग उसमें बहुत अच्छे लेवल पर रीच भी कर चुके हैं। कोरोना टाइम में जब चारों तरफ लॉकडाउन था, लोगों के पास रोजगार खत्म हो गए, नौकरी खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गए, लॉसेज में चले गए, पेमेंट्स अटक गई, हमारी पेमेंट्स अटक गई, तो हम लोगों ने नई चीज शुरू की। क्या करें कि सर्विस इंडस्ट्री पता नहीं कितने टाइम चलेगा, लेकिन हमें किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, तो हमने केवल हाथों से कुछ प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ओके, और 1.5 साल में करीब 6 कंट्री में हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको देना शुरू कर दिया। सो आप में से अगर कोई भी आकर के उस बिजनेस में अर्न करना चाहता है, आई वेलकम यू एवरी टाइम। ओके, इस बिजनेस में अगर आप कोई आकर के मुझसे सीखना चाहते हैं कि मुझे बनाना सिखा दो, वेलकम ऑफ यू पीपल एनी टाइम। आपको लगता है कि आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करके मुझसे सीख करके आप कोई चीज पेटेंट करवाना चाहते हैं, आई वुड रेडी टू इन्वेस्ट एनीथिंग। ओके, अगर आप लोग कोई नई चीज मार्केट में आपको समझ में आती है, आपके दादा नानी के नुस्खे आप लेकर के आते हैं, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट ऑन योर प्रोडक्ट फॉर यू, आई एम रेडी टू गिव यू रॉ मटेरियल। ओके, दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकेंडली, किसानों से रिलेटेड हम लोग पिछले 9-10 महीने से चारों तरफ सुन रहे हैं कि किसान रोड पर बैठा है। ये जो किसान और आर्मी मैन है, फौजी है, उसके लिए हमारे पास इमोशन तो बहुत है, लेकिन हमारे पास करने के लिए या उनको हैंड होल्ड करने के लिए या हाथ पकड़ाने के लिए कुछ नहीं है। हम इमोशनली उनके साथ कनेक्टेड है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप कोई भी प्रोजेक्ट उनके लिए बना करके लेके आओ। लेट्स से मैं एक प्रोजेक्ट का नाम बताता हूँ, आप में से अगर कोई उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा करके कोई ऐप बना सकता है, कोई वेब पोर्टल बना सकता है, कोई प्रोजेक्ट बना सकता है, आई एम देयर टू इन्वेस्ट ऑन योर प्रोजेक्ट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। आई थिंक मेरा टाइम हो चुका है, नहीं अभी मेरे पास टाइम। ओके, सो आई एम देयर टू इन्वेस्ट ऑन योर आइडियाज। ओके, द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 5 lakh to 15 lakh, anytime, anywhere, any day, anything you want to represent, you can contact your training and placement cell, Aditya Veer sir and Pratap sir, and you can give your file, you can take directly contact number of mine. So एग्री से रिलेटेड कोई भी आइडिया आपके माइंड में आता है। थर्ड थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, आप लोगों को काम करने के लिए स्पेस चाहिए, सो come to my office, sit there, I would give you anything that is required for your execution work. Okay, so आप आकर के वहाँ काम कीजिए, I will provide you the space for working, I will provide you the office for working. Okay, I will provide you the address for working. Okay, so you can come any day, you can give your ideas, no worries. Now if you people wants to ask anything, you can write in the chat box one thing, or you can directly unmute your mic and ask me. That's all from my side. Yeah, Nitya, please. Nitya, you have raised the hand. Am I audible? Yeah, you are audible now. So, sir, actually, I want to ask you about NSDC and PMKVY. Okay, so NSDC, this is a National Skill Development Corporation, one of the central government organization जो कि स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है। किसी भी लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटी सैलून, एग्री, आईटी, टाइपिंग, प्रिंटिंग, मैकेनिकल, आईटीआई, ओके, दिस शोल्डरिंग, ओके, सो किसी भी तरीके का स्किल जो कि बेसिक स्किल्स हैं, ओके, स्टेनोग्राफी, पेपर राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये हर तरह के कोर्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। इनका एक कोर्स करिकुलम है, सो एक 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने के कोर्सेज हैं। हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन रूरल में भी इनके सेंटर्स बने हुए हैं। आप डायरेक्टली उन सेंटर में जाकर के अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। आप अपने आप को इस 2-3 महीने के प्रोग्राम में एनरोल करवाएंगे, आपको एक सर्टिफिकेट उनसे मिलेगा, आपका 80% अटेंडेंस वहां पर होना चाहिए। वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके बिहाफ पर उसी सेंटर को आप कहेंगे कि मुझे प्लेसमेंट भी चाहिए। ओके, सो वो सेंटर की गारंटी होगी कि वो आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करेगा। ओके, सो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नॉर्म्स है
कि जो बच्चा ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेगा उन्हें उस सेंटर को पर्टिकुलर प्लेसमेंट की ऑप्शन भी प्रोवाइड करने होंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, सम प्राइवेट सेंटर्स आर सेम काइंड ऑफ एनएसडीसी है, जो किसी भी सेंटर को एक एनरोलमेंट देता है। ओके, और पीएमकेवीवाई है जो डायरेक्टली हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके ऊपर असिस्टेंस रखता है, मॉनिटरिंग करता है। सो ये दोनों डिपार्टमेंट इंटरनली कनेक्टेड है, ये दोनों स्कीम इंटरनली कनेक्टेड है। एनएसडीसी जस्ट टू गिव अ परमिशन, ओके, एनरोलमेंट, एंड पीएमकेवीवाई डायरेक्टली टू मॉनिटर द स्कीम। ओके, दिस इज एवरीथिंग। मैंने एनएसडीसी और पीएमकेवीवाई दोनों में काम किया है। आई वाज रनिंग अ सेंटर जिसमें मेरे पास कोर्सेज थे, डिफरेंट अपैरल्स का कोर्सेज था, ब्यूटी का कोर्सेज था, बट आफ्टर सम टाइम उसमें कुछ चेंजेस हुए। तो जैसे अभी पोस्ट कोविड ऐसा हुआ कि ये चीजें ऑनलाइन रन होने लग गई। तो आई वांट टू आस्क अबाउट दोज मैटर, लाइक उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है, हाउ कैन आई सेट अप द सेम थिंग? राइट, अभी पीएमकेवीवाई 4.0 लॉन्च हुआ है वेरी रिसेंटली। ओके, सो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया, आपने सेंटर रन भी किए हैं, तो अगर आपने ध्यान दिया, ये स्कीम तो लॉन्च हो गई थी 2005-6 में, तब से रन होती आ रही है, लेकिन 2013 तक केवल कागजों में ही स्किल डेवलपमेंट हो रही थी। कोई बच्चा आकर के वहां नहीं ले रहा था, बल्कि बच्चों के नाम पर सेंटर ही केवल अर्न कर रहे थे। सो वो वहां पर बहुत बड़ा घोटाला था। लेकिन 2014 में सरकार चेंज होती, सबसे पहले पीएमकेवीवाई 1.0, फिर 2016 में पीएमकेवीवाई 2.2, फिर 2018 में पीएमकेवीवाई 3.0, अभी पीएमकेवीवाई 4.0। सो हर साल इसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किए गए। अभी कोरोना में डेफिनेटली, क्योंकि बच्चे लोग नहीं आ सकते थे या लॉकडाउन था और डायरेक्टली फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना किसी छोटे सेंटर के लिए पॉसिबल नहीं था, तो कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें कि कंटेंट राइटिंग है, या अभी जैसे आप बता रहे हो कि कुछ लिटरेचर रिलेटेड था, ओके, कुछ वेब रिलेटेड था, कुछ आईटी रिलेटेड था। तो ये स्कीम्स लॉन्च की गई। इसमें हाँ कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ जैसे पर स्टूडेंट पर हेड जो गवर्नमेंट पे कर रही थी, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं कि पहले 12,000 पे कर रही थी गवर्नमेंट, अभी उसे 10,000 किया गया, 9,000 किया गया, है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान में होगी नित्या। यस यस। हाँ जी, सो इसमें पर्टिकुलर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे उस पॉइंट पर बताइए। एक्चुअली सर हम लोगों के साथ क्या था कि बहुत अच्छे से सेंटर चल रहा था, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई तो बायोमेट्रिक यूज करना पड़ा। तो लेकिन बाद में जैसे कोविड आया तो चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया। तो जो सेंटर्स अप्रूव्ड थे, जिन्हें उन्होंने अप्रूव किया हुआ था, लाइक जो नॉर्म्स वगैरह फुलफिल हुई थी, तो उस सब चीजों को कैंसिल करके कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ गवर्नमेंट की डील हुई थी कि ये जो आईटी का पार्ट है वो वाया प्राइवेट कंपनीज ही चल सकता है, कोई एक पर्टिकुलर सेंटर रन नहीं हो सकता। तो मुझे राइट, आप हुआ क्या था, कुछ बड़ी कंपनी जैसे कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली फंडिंग करने की बजाय कुछ कंपनीज का सीएसआर जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कंपनीज को कहा कि आप डायरेक्टली अपने सीएसआर को स्किल डेवलपमेंट में यूज करें, जैसे एलएनटी, टाटा, रिलायंस, ओके, ये जो बड़े नाम है, महिंद्रा। सो उन कंपनीज के थ्रू फिर एक्रीडेशन आपको मिलना शुरू हो गया। इसमें एक लॉस क्या हुआ, जैसे कि आपका एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, आप किसी कंपनी से कनेक्टेड नहीं है, सो आपको लॉस ये हुआ कि आपका एग्रीडेशन वहां से क्रॉस हो गया, ठीक है, आपका एग्रीडेशन चला गया। आप डायरेक्टली किसी भी सीएसआर कंपनी जो इस तरीके की स्कीम को रन कर रही है, जैसे महिंद्रा रन कर रही है, एलएनटी रन कर रही है, सो आप डायरेक्टली उस कंपनी के पीआर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस एग्रीडेशन को लेने के लिए। इसके लिए आपको असिस्टेंट मिलेगा एनएसडीसी सेंटर दिल्ली से, जो इनका हेड ऑफिस है, वहां से आपको डायरेक्टली असिस्टेंट मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी सीएसआर की बात आई, सो पहले सीएसआर केवल और केवल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस की सोशल एक्टिविटी के लिए लगाया जाता था। अभी पिछले साल से जब से कोरोना आया, तो कोरोना में ये गाइडलाइन दे दिए गए कि कोई भी कंपनी अपने सीएसआर फंड को अगर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, किसी स्टार्टअप के ऊपर लगाती है, तो वो फंड भी उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। So directly you people can connect with as well, जिसका भी 100 CR से ऊपर का टर्नओवर है, वो सब कंपनी सीएसआर फंडिंग के उसमें आती है। हमारे शहर में अगर हिसार की बात करें तो जिंदल ग्रुप में आप जाकर के डायरेक्टली अपना फाइल दे सकते हैं। तो वो ये जो सेंटर्स हैं,
ये डायरेक्ट, ये जो कंपनीज हैं ये अपना CSR फंड फ्लोट करते हैं इंक्यूबेशन के थ्रू। जैसे हमारे हिसार में HAU यूनिवर्सिटी, वैसे GJU में भी इंक्यूबेशन सेंटर है। सो HAU यूनिवर्सिटी में जो इंक्यूबेशन सेंटर है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, सो आप वहां जाकर के डायरेक्टली अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। 5 लाख से 25 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस, सीड फंडिंग आप लोगों को 2 महीने 3 महीने के एग्जीक्यूशन में डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, सो आप अपने आप को किसी भी इंक्यूबेशन से रजिस्टर कर लीजिए, उनके साथ अपना वर्किंग स्टार्ट कीजिए, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कीजिए। इंक्यूबेशन से आपको कंप्लीटली मेंटरशिप मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, हैंड होल्डिंग मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, ग्लोबली आपका विजिबिलिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर मल्टीपल कंट्रीज के कोऑर्डिनेटर्स, एम्बेसडर्स या इन्वेस्टर्स कनेक्ट होते हैं, तो आपको डायरेक्टली उनसे एक हैंड होल्डिंग और विजिबिलिटी आपको प्राप्त होगा। एनी अदर वन? Thank you, Jagat ji, for a wonderful presentation. I am Dr. Kusum Lata and मैं जस्ट ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, आपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो बता इतने से लेकर उतने तक का आप एक प्लानिंग करेंगे, उसके लिए जो है गवर्नमेंट या अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं वो आपको फंड प्रोवाइड करवाएंगी, लेकिन क्या कोई ऐसी पॉलिसी है या कुछ, मान लीजिए अगर फेलियर है आपके बिजनेस में, अगर फेलियर हो जाता है या आपके फंड्स जो हैं वो ज्यादा या एक्स्ट्रा आपके ऊपर कोई बर्डन आ जाता है, तो क्या ऐसे में भी गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है, कुछ इसके लिए कोई प्रोसीजर है? ये क्वेश्चन वैसे बहुत बार आ चुका है, और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पार्लियामेंट में कुछ पेपर्स भी सबमिट हुए हैं कि इसके रिगार्डिंग भी, कि बिजनेस सेफ्टी के रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट को कोई काम करना चाहिए। सो अभी तक कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसा असिस्टेंस नहीं है या फिर कोई ऐसा हैंड होल्डिंग नहीं है कि अगर आपका बिजनेस खराब हो जाता है या फिर आपका स्टार्टअप बंद हो जाता है या आपके ऊपर कोई अदर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, तो आपको कुछ सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए। ओके, बट इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने इंक्यूबेशन का बताया, ये जो सीड फंडिंग आपको इंक्यूबेशन से मिल रहा है, इसमें आपको वो पैसा गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है, ये प्योरली सीड फंडिंग है। ठीक है, आपको अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए ही लगाना है, राइट? तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये 5 लाख 25 लाख रुपए जो भी गवर्नमेंट आपको सीड फंडिंग दे रहा है, कोई आपके ऊपर बर्डन आएगा या फिर आपका बिजनेस खराब होगा। हाँ, अगर कोई इवेंट बट हो जाता है या फिर कहीं से भी आप या लॉस खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, असिस्टेंट अगर मिल रहा है तो वो ठीक है, कि आपको पर मंथ कुछ असिस्टेंट मिल रहा है तो वो बेनिफिशियल है। हाँ डेफिनेटली बेनिफिशियल। एकदम आप पैसा उठा रहे हैं तो वहां पे नुकसान भी हो सकता है। एग्जैक्टली, सो इसमें यहीं पर इंक्यूबेशन से कनेक्ट होने में बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपके सामने बहुत सारे मेंटर्स हैं। ओके, पर्टिकुलर फील्ड से, जैसे फाइनेंशियल मेंटरशिप आपको चाहिए, सो इंक्यूबेशन आपको पर्टिकुलर मेंटर से कनेक्ट करवाएगा, ताकि आप एक एक स्टेप संभल संभल कर चले, आपको कोई नुकसान ना हो। इंक्यूबेशन का काम भी यही है कि आप आगे बढ़े, ठीक है, और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो बिजनेस में ये चीजें तो ध्यान करनी होती है कि हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो ये प्री एजम्पशंस आप कह दीजिए या फिर हमारा प्रायर वर्किंग कह दीजिए, या प्रायर टू एग्जीक्यूट वी शुड एनालाइज द थिंग्स, तो मार्केट एनालिसिस कह दीजिए। तो ये बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल हम ले, स्किल इंडिया में बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन कुछ स्टडीज ऐसी भी आई, हमने खुद पढ़ी हैं, एनालाइज की हैं, कि जहाँ पे बहुत सारे लगा दिया है और उसके बाद से क्या उनका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाया, या जिस तरह से गवर्नमेंट के साथ जो भी उनका वो रहा होगा, तो उसमें उनको प्रॉब्लम आई। तो दोनों ही चीजें, जैसे आपने बताया कि मिक्स हैं, कि कहीं पे आपको नुकसान भी हो सकता है और उसमें फायदा भी हो सकता है। तो वो एक एनालिसिस के ऊपर है कि आप किस तरह से आपने पूरे रिसर्च और किस तरह से आप मार्केट में गए हैं और कैसे अपने जो टारगेट कंज्यूमर हैं उन तक पहुंचे हैं और कैसे अपने बिजनेस को चला रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। एग्जैक्टली, सो कामयाब होने के भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और फेलियर होने के भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हम सभी फैक्टर्स को प्रायर एजम्पशंस या फिर प्रायर, एक कहते हैं कि फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन हर स्टेप को सोच समझ करके, मार्केट एनालिसिस करके, मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में एक्चुअल में कितनी डिमांड है, मुझे किस कैटेगरी को पिच करना चाहिए, मुझे कॉस्ट इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मुझे मार्केट में किस रेंज में बेचना चाहिए। तो क्योंकि आज मेरा ये टॉपिक नहीं है तो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा,
बट एक स्टार्टअप को किस तरीके से from day 1 to till 7th year of your execution of your startup existing. Okay, so ये 7 साल जो स्टार्टअप के लिए होते हैं, these are very crucial. किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को, किसी भी स्टार्टअप को सस्टेन होने में मिनिमम 5 to 7 ईयर का टाइम लगता ही लगता है. सो ये 7 ईयर का पेशेंस है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है और ये मेंटेन करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. Thank you, sir. Thank you very much. Any other, if you want to ask anything, then I'm there for the next 10 minutes. Hello, sir. Dr. Yogesh Sharma this side. Sir, just one question I would like to ask. Initially, you mentioned about Ji. So I just want to confirm, like the loan will be provided by KVIC or it will be provided by the bank? This will be provided by KVIC, okay, खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन. सो KVI, मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन बता देता हूँ. आपको केवल एक आपका पार्टनरशिप होना चाहिए, मीन्स की यू शुड बी सिंगल एंटाइटी ऑन योर नेम. ओके, आप सिंगल पर्सन होने चाहिए जिसके नाम पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है. इसमें प्राइवेट लिमिटेड या LLP नहीं रिक्वायर्ड है, केवल आपके नाम पर ही फाइल प्रोसीड होगी. जब आप अपना पार्टनरशिप रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, उसी टाइम पर आपका फाइल एग्जीक्यूट होगा. इसके लिए आपको KVIC से डायरेक्टली फॉर्मेट मिल जाएगा, DPR मिल जाएगा, आपको वो फाइल करके देना है. सो प्रायर टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट फाइल. वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये फंड मिल सकता है, ये लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. अगर सैंक्शन हो गया तो सैंक्शन होने के बाद अपना आप फर्दर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पर जा सकते हैं. Sir, I have a firm registered as a proprietorship. I am the whole sole owner of that. So can I go for this, sir? No, sir. No, you can't go because you are already existing in the market. So Okay. आप अगर नया कंपनी रजिस्टर करने जा रहे हैं, then you can proceed. Okay. Yes. And if you allow, I just want to add something. One question. One student asked about NSDC. So I am working as a master trainer in this program from the last 4 years. So I would like to add whatever you said. There are 36 sector skill councils which are working in the country. Those are working under NSDC. So as per student, your interest and as per your specialization, you can apply for different courses which are available 100% free for the students. Suppose we are having students of MBA. So you people can visit the website of MEPSC, Management Entrepreneurship Professional Skill Council, where various courses are there which are related to management. Then on the NSDC website itself, that's a single website. You can find all the information, authentic information related to Skill India. So in Hisar, there are 2 centers which are running skill development, 100% free. You will get the list of the courses they are offering. You can students can enroll. So as well as that extra certification will help you when you will go for your placements. So that's how that facilities can also be used. Thank you. So Yogesh, on some day we will have one dedicated session of yours regarding this topic. It would be beneficial. Sure, sir. Sure. I will be there, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Any other query if you people have, you can ask, please. Thank you. Yeah, someone has unmute your mic. Someone has. Okay. So thank you so very much, students. So I really appreciate your patience. You people listen me and your patience was really very nice. तो पिछले 1.5 घंटे से शायद बहुत काम की चीज मैं नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती है. बट आई अप्रिशिएट द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स ऑफ गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी, स्पेशली प्रताप सर एंड आदित्य वीर सर, कि आपको प्रायर ये इंफॉर्मेशन मिल वेरी नेसेसरी. मुझे याद है कि मेरे कॉलेज टाइम में शायद हमें ये चीजें नहीं मिला, इसीलिए हम लोग बिजनेस लाइन में आने में बहुत लेट हो गए. बट यू पीपल आर रियली यू नो बहुत, यू आर वेरी लकी कि आप लोगों को ऐसे प्लेसमेंट ऑफिसर्स मिले हैं
जो इतना एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, राइट। Many thanks from my side and very congratulations to training and placement cell Guru Jameshwari University. And I wish कि आप स्टूडेंट्स को इसी तरीके से गाइडेंस मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते रहेंगे. Thank you from my side. Thank you so very much. Thank you, Jagatji, and it was a wonderful session, and I hope students will learn a lot of things from this, and they will apply these things in their future endeavors if someone is thinking of starting his own startups and all. So, Jagatji, I would request if you can share the PPT with us so that this can be shared with the participants, and that will Perfectly. I will mail the PPT to you on your mail ID. Okay. Thank you very much. Thank you, Jagatji. Thank you for coming here. All the students are requested to kindly switch on their camera for the group pic. Thank you. Thank you all. Feedback form and next session. Yeah, next session will commence on 2:30, sharp 2:30. So I would request everyone to be joining at the set time. And the room will be, the meeting room will be locked at 2:40. So everyone should be there by 2:30. Okay, and the feedback form is open till 1:05. It's open. You can try it now. Okay, thank you. Have lunch and then rejoin. Thank you. Thank you very much.